جب خدا کی محبت ہمارے اندر آتی ہے تو وہ صبر بھی لے کر آتی ہے. جب اب خدا کی محبت ہمارے اندر آتی ہے تو ہم تحمل سے بھر جاتے ہیں, پرہیزگاری آنا شروع ہو جاتی ہے, حلیمی آنا شروع ہو جاتی ہے. خدا کی محبت ہمارے اندر جب آتی ہے تو ہم اور زیادہ پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم خدا کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں. جب خدا کی محبت ہمارے اندر آتی ہے تو ہم شیخی نہیں مارتے, ہم پھولتے نہیں ہیں, ہم کوئی ایسا نازیبا کام نہیں کرتے جسے خدا ناراض ہو. میرے عزیز ہو, ایک بار پھر اپنا دھیان خدا کے کلام کی طرف لگائیں. ہم قوت کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں, اور قوت جو ہے کہاں سے آتی ہے, قوت کا منبع کیا ہے, قوت کی سورس کیا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمیں قوت سے بھرے ہونا ضروری ہے. اگر ہم ایمان تو رکھتے ہیں لیکن قوت سے خالی ہیں تو پھر ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم بدروحوں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے, ہم اپنے ارد گرد کے حالات کو جو ہمارے مخالف ہیں ہم ان کا سامنا نہیں کر سکتے. میرے عزیزو, آج ایک اور بڑی قوت کو ہم سیکھنے والے ہیں, اور وہ ہے محبت. خدا کے کلام کے مطابق جو محبت ہے, اگاپے لو جو ہے, اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی قوت ہے. خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے ہمیں کس طرح سے اس قوت سے بھرنا ہے, اور ہم سیکھیں گے کہ محبت کی قوت ہے کیا, ہم سیکھیں گے کہ محبت کی وضاحت کیا ہے, اور ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ گریٹسٹ کمانڈمنٹ کیا ہے. خدا کا کلام جو ہے اس کے تعلق سے کیا بیان کرتا ہے, اور ایک بڑا عظیم ترین حکم بھی یہ ہے. اور ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ محبت ایک روحانی پرنسپل ہے, ایک بڑا اصول ہے جو ہم ایمانداروں کے لیے وضع کیا گیا ہے. کلام مقدس کی ایک خوبصورت آیت, پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں ہم دیکھیں گے کیا لکھا ہے. لکھا ہے, غرض ایمان, امید, محبت تینوں دائمی ہے, مگر افضل ان میں محبت ہے. And now there remains faith, abiding trust in God. خدا پر بھروسہ رکھنا, خدا کے وعدوں پر بھروسہ رکھنا, اور اسی طرح امید, ایک کانفیڈنس, ایکسپیکٹیشن آف ایٹرنل سالویشن. ہم یہ ایمان رکھتے ہیں, امید رکھتے ہیں, اور ہمارا کامل بھروسہ بھی ہے, اور محبت جو unselfish love for others, growing out of God's love for me, یہ تینوں جو ہے یہ eternal ہے, یہ خدا کا فضل ہے. But the greatest of these, سب سے بڑی چیز جو ہے وہ خدا کی محبت ہے. خدا کی محبت کو ہم ڈیفرنٹ اینگلز کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ محبت نہیں ہے جو دنیا کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. دنیا جو ہے وہ محبت کے مختلف معنوں کو لے لیتی ہے. خدا کی محبت ہمیں نظر آتی ہے جب اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کو, جب ہم گنہگار ہی تھے, تو ہمارے لیے قربان کر دیا. یہ ہے اس کی کامل محبت. ہم دیکھتے ہیں خدا کی محبت جب ہم گنہگار ہیں, ہم خدا کے رستوں پر بھی نہیں چلتے, کلام پر بھی نہیں چلتے, کئی دفعہ ہم نافرمانی کرتے ہیں, خدا کے رستوں سے غافل ہو جاتے ہیں, تو بھی خدا ہمارے لیے مہربانی اور اپنا فضل برساتا ہے. یہ ہے خدا کی محبت. اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں, غلطیوں کے خط میں پالوس جو ہے وہ روح کے پھلوں کی ایک بڑی خوبصورت لسٹ دیتا ہے, اور روح کے پھلوں میں سے سب سے بڑا پھل جو ہے وہ محبت ہے, اور کلام میں لکھا ہے روح کا پھل محبت ہے, اور اسی طرح خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری. لیکن the greatest is, جو سب سے بڑا پھل جس کے بارے میں کلام کہتا ہے روح کا پھل, وہ محبت ہے. ہاللیلویہ, روح کا پھل محبت ہے. اور اگر کسی سے پوچھا جائے کہ مسیحیت کا دار و مدار کس کے اوپر ہے, تو آپ ایک لفظ کے ساتھ مسیح کی محبت کو اور ساری کرسچینٹی کو, مسیحت کو آپ ایک لفظ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں, اور وہ ہے محبت. ہاللیلویہ. محبت جو ہے یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان دوسرے انسان کے لیے
दिखाता है। और खुदादाद मोहब्बत जो है एक ऐसी मोहब्बत है जो इंसान अपने तौर से अपने अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये मोहब्बत जो है ना तो हम इसको पैदा कर सकते हैं, ना ही ये किसी और तजर्बे से हमें मिल सकती है। ये खुदा की मोहब्बत जो है ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम के अंदर से आपको मिलेगी। खुदा की मोहब्बत जो है वो खुदा के खादमों के साथ रफाकत रखने से आपको मिलेगी। खुदा की मोहब्बत जो है ईमानदारों के साथ चलने से आप सीखेंगे। खुदा की मोहब्बत जो है वो कलाम मुकद्दस के अंदर से हमें सीखने का मौका मिलता है। खुदा की मोहब्बत को अगर आपने सीखना है तो फिर अब आपको खुदा के कलाम को पढ़ना पड़ेगा। आपको अंबिया को, रसूलों को और खुदा में यीशु मसीह की जिंदगी को स्टडी करना पड़ेगा। अगर खुदा की मोहब्बत आपने अपने अंदर लेकर आनी है तो फिर आप समझ लें कि आपने इस दुनिया को फतह कर लिया है। हालेलुया। तो सबसे बड़ी ताकत हम देखते हैं करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल खत लिखता है और कहता है मोहब्बत जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और वो एक पूरे बाब के अंदर इसको कंक्लूड करता है और कहता है अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं। वो पूरे क्रिश्चियनिटी को, पूरी मसीहत को वो एक ही लफ्ज के साथ जोड़ देता है। वो कहता है कि अगर तुम गैर जुबानें बोलते हो, बहुत सारी जुबानें बोलने वाले हो, मौजज़ात करने वाले हो, नबूवत करने वाले हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर मोहब्बत नहीं है तो फिर तुम्हारा मकाम खुदा की बादशाहत में नहीं है। खुदा की बादशाहत मोहब्बत के ऊपर बेस करती है। खुदा की बादशाहत मोहब्बत के साथ मुंसलक है। खुदा की बादशाहत मोहब्बत के साथ इस तरह से जुड़ी है कि अगर मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मोहब्बत के अंदर एक बड़ी कुवत है। मोहब्बत के अंदर एक बड़ी पावर है। मोहब्बत जो है ये बड़े से बड़े पत्थरों को भी तोड़ देती है। मोहब्बत जो है बड़े से बड़े पहाड़ को भी मैदान कर देती है। मोहब्बत जो है खुदा की हजूरी से बरकत को ले आती है। मोहब्बत जो है खुदा की हजूरी से आपके लिए शिफा को बर्पा कर देती है जब आप लोगों के लिए मोहब्बत गुजार करते हैं। हमारा रवैया बहुत ही ज्यादा सख्त होता है लोगों के लिए, खुदा के लोगों के लिए, ईमानदारों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने अजीजों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलना शुरू कर दूं, मैं रोज ऊंची ऊंची दुआएं करूं, हर रोज कलाम मुकद्दस को पढ़ूं, हर रोज दुआ करूं और नबूवतें करूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं बिल्कुल बेफायदा इंसान हूं। मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर कोई खास बात नहीं है, मेरा खुदा की बादशाहत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप मोहब्बत से खाली हैं तो खुदा की कुवत आपके अंदर काम नहीं कर सकती। फिर आप जितनी ज्यादा बड़ी से बड़ी दुआएं कर लें, शिफा नहीं आएगी। जब आप मोहब्बत के साथ खुदा की हुजूरी से मांगना शुरू करते हैं तो फिर आपके लिए काम होना शुरू हो जाता है, दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। जब आपका दिल लोगों के लिए खुल जाता है, जब आपका दिल इंसानों के लिए खुलता है, जब आपका दिल गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए, कमजोरों के लिए और हर तरह के बीमारों के लिए आप दुआ करना शुरू कर देते हैं, आप उन तमाम लोगों को अपनी दुआ का हिस्सा बना लेते हैं, तो फिर खुदा आपके लिए शिफा को बर्पा करता है, बहाली को बर्पा करता है। और पौलुस कहते हैं अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों का कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो जाए कि पहाड़ों को हटा दूं, लेकिन मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। तो मैं कुछ भी नहीं। मेरे अजीजों, मोहब्बत के अंदर बहुत बड़ी कुवत है। अगर आप चर्च आते हैं, आप कलाम को भी पढ़ते हैं, आप हर तरह की रूहानी बरकतों से शेर हैं, माला माल हैं, लेकिन आपका रवैया दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मोहल्लेदारों के साथ नफरत अंगेज है। आपका रवैया इंतहाई नागवार है। लेकिन मेरे अजीजों, आप फिर रूहानी एतबार से खुदा की लिस्ट के अंदर, खुदा के कलाम के मुताबिक और उस किताब हयात के मुताबिक आपका लेवल 0 है। आप कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत सारे खादमों को देखा,
کئی ایسے خادم میں نے دیکھے جو بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن جب لوگ ان کے گھروں میں جاتے ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، دعا کی ریکویسٹ کرتے ہیں، ان سے ملاقات کا وقت لینا چاہتے ہیں، ان کے پاس لوگوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، لوگوں کی باتوں کو سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ان کے دکھوں کو سننے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور اگر کوئی لوگ آ جائے ان کے پاس تو وہ محض یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ بھائی جی آپ کے لیے دعا کر دی ہے، دیٹس انف۔ میرے عزیزو، محبت کا رویہ خادموں کو اپنانے کی ضرورت ہے، آپ ایمانداروں کو محبت کا رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب آپ محبت سے خالی ہوں گے خدا کی قوت سے خالی ہوں گے، آپ جب محبت سے خالی ہوں گے پھر خدا کا کلام اور اس کی قوت آپ کے ذریعے سے کام نہیں کرے گی، اور پھر آپ اسی طرح ہی ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں گے۔ میرے عزیزو، کلام کیا کہتا ہے، غور سے سنیں۔ اور اگر اپنا سارا مال ہم غریبوں کو کھلا دیں، اپنا بدن جلانے کو دے دیں اور محبت نہ رکھیں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ This is the most important thing۔ ہمیں اس بڑی قوت کو سمجھنا ہے، ہمیں محبت کی قوت کو اپنے اندر رکھنا ہے، ہمیں محبت کے ایلیمنٹ کو اپنے اندر رکھنا ہے۔ میرے عزیزو، کیا ہم غریبوں کو کھانا کھلا کر ہم صرف یہ جتانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے سخی ہیں یا ہم کتنے رحم سے بھرے ہوئے ہیں؟ لیکن وہی لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں ٹائم لیتے ہیں، بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹائم۔ میرے عزیزو، غور سے سنیں کلام کیا کہتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے کے باوجود ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک ہم اپنے اندر خدا کی محبت کو نہیں رکھ لیتے، جب تک ہم اپنے اندر خدا کی محبت کو پروڈیوس نہیں ہونے دیتے، تب تک میرے عزیزو ہم بالکل ٹھنٹھناتا پیتل ہیں، جھنجھناتی جھانجھ ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم بیکار ہیں، ہم ایک صرف ڈھونگ رچاتے ہیں خدا کے ساتھ چلنے کا۔ کلام کیا کہتا ہے؟ محبت صابر ہے، محبت مہربان ہے، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی، وہ پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، محبت کو زوال نہیں۔ نبوتیں ہوں تو وہ معکوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو وہ جاتی رہیں گی، علم ہو دنیا کا تو وہ مٹ جائے گا، دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، دنیا کی ساری دولت ختم ہو جائے گی، دنیا کی شان و شوکت ختم ہو جائے گی، دنیا کا سارا نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن میرے عزیزو علم ہے وہ بھی ناقص ہے، نبوتیں ہیں وہ بھی ناتمام ہیں، زبانیں ہیں تو وہ بھی جاتی رہتی ہیں، علم ہے تو وہ مٹ جائے گا، اور نبوتیں ہیں تو وہ معکوف ہو جائیں گی، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ تو کامل کون ہے؟ کامل آپ کے اندر وہ محبت ہے جو خدا کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک قوت ہے۔ آخر میں اگر ہم دیکھیں، وہاں لکھا ہے اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے، اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ غرض ایمان اور امید اور محبت تینوں دائمی ہے، مگر افضل جو ہے وہ محبت ہے، افضل محبت ہے۔ محبت کے اندر بہت بڑی پاور ہے۔ کئی دفعہ ہم محبت کو غلط معنوں کے اندر ریسیو کرتے ہیں۔ غلط معنی یہ ہے کہ ہم دنیا کی محبت کے ساتھ اس کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا کی محبت کے اندر عریانی ہے، بدی ہے، زناکاری ہے۔ دنیا کی محبت جو ہے وہ صرف اور صرف فائدوں کے لیے ہے، ناجائز فائدے ہیں، اس میں آپ ٹٹ فور ٹیٹ کرتے ہیں، عدلے کا بدلہ ہے۔ محبت صرف ایک کمپرومائز ہے، محبت صرف ایک ایسا دھوکہ ہے جو اس دنیا میں لوگ آپ کے ساتھ کرتے ہیں، اور جب آپ اس کا تجربہ کرتے ہیں تو پھر آپ انتہائی افسردہ ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، پرابلم میں چلے جاتے ہیں۔ محبت سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے بڑی ہے۔ کلام میں لکھا ہے غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہے، مگر افضل the greatest is the love۔ محبت ہے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ غیر زبانیں بھی بولتے ہیں، لیکن جو ہی غیر زبان مل جاتی ہے ہم اور زیادہ ہمارے اندر غرور اور تکبر بھر جاتا ہے،
اگر ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، نالج آ جاتا ہے، علم آ جاتا ہے، اور ہم اور زیادہ غرور سے بھر جاتے ہیں. اگر کوئی گفٹ آف پروفیسی مل گئی ہے یا کوئی روحانی نعمت مل گئی ہے تو ابھی ہم بہت زیادہ غرور اور تکبر سے بھر جاتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، ہمارا ایمان، ہمارا دینا، ہماری شہادت اور اسی طرح ہماری نبوتیں، ہمارا علم اور ہماری تمام تر روحانی نعمتیں اگر محبت سے خالی ہیں تو پھر ہم بالکل کچھ بھی نہیں ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. اگر ہم جتنا بھی ایمان رکھتے ہیں خدا پر، کلام پر، ہم چرچ بھی جاتے ہیں، لیکن اگر ہم محبت سے خالی ہیں تو پھر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. میرے عزیزو، کلام شروع سے لے کر آخر تک محبت سے بھرا ہوا ہے. خدا کی محبت کو ہم باغ عدن کے اندر دیکھتے ہیں. کس طرح سے خدا نے باغ عدن کے اندر آدم اور حوا کو ایک خوبصورت باغ لگا کے دیا. یہ اس کی محبت تھی. اس نے کہا کہ سب درختوں کا پھل کھانا لیکن ایک درخت کا پھل نہ کھانا. یہ اس کی محبت تھی. جو ہی آدم سے گناہ ہوا، خدا نے فوراً اپنی محبت کا اظہار کیا اور اس نے اس زندگی اور حیات کے درخت کا پھل کھانے سے انہیں روک دیا. اگر انسان اس زندگی اور حیات کے درخت میں سے کھا لیتا تو وہ کبھی بھی جو ہے اپنی توبہ تک نہ پہنچ پاتا. وہ ابلیس کی مانند بن جاتا، وہ ابلیس کی مانند بن جاتا. اور خدا نے فوراً اس رستے کو بند کیا، اس کے لیے لنگیاں بنائی. اور خدا کی محبت ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے خدا نے یہ وعدہ کیا کہ میں تیری نسل میں سے ایک اور نسل بناؤں گا اور وہ ابلیس کے سر کو کچلے گی. میرے عزیزو، خدا کی محبت کو ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے خدا نے انسانوں کے ساتھ کلام کیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں خدا کی محبت کا ایک زندہ ثبوت ہمیں نظر آتے ہیں کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کو قربان کر دیا، مار دیا، آپ کے لیے مار دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. میرے عزیزو، خدا کی محبت کیا ہے؟ قرآن مقدس میں اگر ہم رومیو 5 باب 5ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. تو یہ خدا کی محبت آپ کے اندر ڈال دی جاتی ہے. خدا کی محبت کا کوئی ٹریننگ نہیں ہے. خدا کی محبت ہم 1 سالہ یا 2 سالہ ڈپلوما کورس نہیں کرتے ہیں. خدا کی محبت کو سیکھنے کے لیے ہمیں کسی بائبل کالج میں یا یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی محبت ہمارے اندر ڈال دی جاتی ہے روح القدس کے وسیلہ سے. روح القدس ایک ایسی سورس ہے، سمجھ لیں کہ ایک انجیکشن ہے جس کے اندر میڈیسن روح القدس نے ڈالی ہے اور وہ ہے محبت. اور وہ ہمارے اندر انجیکٹ کر دی جاتی ہے اور ہم روح القدس کی محبت سے بھر جاتے ہیں. محبت، گہری محبت، دیکھ بھال، فکر کا ایک جذبہ ہے، کنسرن ہے، کیئر ہے، جو روح القدس کے ذریعے آپ کی زندگی میں ڈال دی جاتی ہے. میرے عزیزو، یہ محبت کی ایک قسم نہیں جو آپ خود کو فروغ دے سکتے ہیں. یہ ایسی ایک خدا داد صلاحیت ہے جو آپ کے اندر ڈالتی جاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کرنتھس کی کلیسیا کو خدا نے پالوس کے وسیلے سے ایک بڑا مکاشفہ کھولا تو وہاں اس نے یہ بات کی، محبت صابر ہے، مہربان ہے، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی، پھولتی نہیں ہے، نازیباً کام نہیں کرتی. یہ ساری چیزیں خدا کی محبت کے اندر چیزیں ہیں. ہمارے اندر مہربانی ہونی چاہیے، ہمارے اندر صبر ہونا چاہیے. جب خدا کی محبت ہمارے اندر آتی ہے تو وہ صبر بھی لے کر آتی ہے. جب اب خدا کی محبت ہمارے اندر آتی ہے تو ہم تحمل سے بھر جاتے ہیں، پرہیزگاری آنا شروع ہو جاتی ہے، حلیمی آنا شروع ہو جاتی ہے. خدا کی محبت ہمارے اندر جب آتی ہے تو ہم اور زیادہ پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم خدا کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں. جب خدا کی محبت ہمارے اندر آتی ہے تو ہم شیخی نہیں مارتے، ہم پھولتے نہیں ہیں، ہم کوئی ایسا نازیبا کام نہیں کرتے جسے خدا ناراض ہو. کوئی ہم ایسا کام نہیں کرتے جسے کلام ہمیں ملزم ٹھہرائے. خدا کی محبت جب ہمارے اندر آتی ہے تو وہ جھنجھلاتی نہیں ہے، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے وہ خوش نہیں ہوتی ہے.
जो ही हम कोई बुरा काम करते हैं, बदकारी का काम करते हैं, नाराजगी का काम करते हैं, तो हमारे अंदर खुदा की जो मोहब्बत है वो एकदम से रिटेलिएट करती है, रेजिस्ट करती है, और वो एकदम से हमें इशारा करती है कि तुम गलत काम कर रहे हो, तुम बुरा काम कर रहे हो। वो खुश नहीं हो रही, बदगमानी से खुश नहीं हो रही है, वो हमारी बेहतरी चाहती है। खुदा की मोहब्बत जो है उसके अंदर बर्दाश्त है, उसके अंदर सब चीजों को सहने की कुव्वत मौजूद है। खुदा की मोहब्बत जब हमारे अंदर आती है तो हम सब चीजों का यकीन करते हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं और ये कहते हैं खुदावंद हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हम उम्मीद रखना शुरू हो जाते हैं, हम सब बातों की बर्दाश्त करते हैं। मेरे अजीजों, जब हमारे अंदर मोहब्बत आती है तो मोहब्बत फिर जाती नहीं है। कोई हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत को छीन नहीं सकता, ना चोरी कर सकता है, ना हमारे अंदर जो खुदादाद मोहब्बत है वो कोई और शख्स जो है वो छीन सकता है। आपके अंदर जो खुदा ने मोहब्बत डाली है उसको आप बढ़ा सकते हैं खुदा के साथ मिलकर। मेरे अजीजों, खुदा में लिखा है मोहब्बत को ज़वाल नहीं होता, मोहब्बत को कभी ज़वाल नहीं है। नबूवतें हैं तो वो माकूफ हो जाएंगी, जुबानें हैं जाती रहेंगी, इल्म है मिट जाएगा, लेकिन आपके अंदर जो खुदा की मोहब्बत है वो हमेशा कायम रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज इस दुनिया में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और मुश्किल काम एक दूसरे से मोहब्बत रखना है। बहुत औखा काम। तुसी जिन्ना मर्जी मोहब्बत ना परे जाओ, दूजा बंदा हमेशा तुहानू गालें कढेगा। दूसरे लोग जब आपको बुरा कहते हैं तो फिर क्या करने की जरूरत है? क्या आप गाली के बदले गाली देंगे? क्या आप बुरे शख्स के साथ बुरा रवैया अख्तियार करें? आप क्या करने की जरूरत है? जब भी हम दूसरों के रवैये को देखते हैं हम अफसुर्दा हो जाए, हम दुखी होते हैं, हम कहते हैं खुदावन हमारे अंदर जो मोहब्बत है वो तो तेरी मोहब्बत है, हम कोशिश भी करते हैं तेरी मोहब्बत में कायम रहने की, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे जो दुश्मन हैं जो हमारी इस मोहब्बत को चुरा के ले जाते हैं। हम मजबूर हो जाते हैं दोबारा इंसान के रवैये को अख्तियार करने के लिए। कई दफा हम मजबूर हो जाते हैं, हम पुरानी इंसानियत में आ जाते हैं, हम उसी इंसानियत को अडॉप्ट कर लेते हैं, हम झगड़ालू उसी तरह ही हर तरह की बदी से भरना शुरू हो जाते हैं और हम भी उसी रवैये को इख्तियार करना शुरू हो जाते हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं। और हम सोचते हैं कि सब लोग जो है वो इसी तरह चल रहे हैं तो हमें भी इसी तरह ही चलने की जरूरत है। ऐसा नहीं है मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है मोहब्बत को ज़वाल नहीं है। जब मोहब्बत में आप चलना शुरू होते हैं तो फिर आप खुदा के जलाल में भरना शुरू हो जाते हैं, फिर आप खुदा के कलाम में भरना शुरू हो जाते हैं। और खुदा का कलाम जो है यही सिखाता है कि अगर नबूवतें हैं वो जाती रहेंगी और अगर इल्म है तो वो मिट जाएगा, जुबानें हैं तो वो माकूफ हो जाएंगी, लेकिन आपके अंदर खुदा की मोहब्बत जो आपके लिए डाली गई है, लोगों के लिए डाली गई है, वो हमेशा कायम रहती है और उसी के वसीले से आप खुदा की बादशाहत में कोई मकाम हासिल कर पाते हैं। और वही रवैया जो आप दुनिया के लिए आपके अंदर मौजूद है, उस रवैये की वजह से पूरी दुनिया में खुदा आपको सरफराज करना शुरू करता है। आप देखें बड़े बड़े लोगों को जो इस दुनिया में बहुत ज्यादा कामयाब हुए, आप कभी उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ के देखें, उनकी हालात जिंदगी को पढ़ के देखें कि किस तरह से वो दुनिया में एक अजीम तरीन मकाम को हासिल कर पाए। मैं तो बड़े शौक से उन किताबों को या उनकी टेस्टिमनीज को सुनता हूं कि ये किस तरह से एक बड़ा मकाम हासिल कर पाए। तो उसके अंदर हम एक बड़े एलिमेंट को देखते हैं कि उन्होंने खुदादाद मोहब्बत को और ज्यादा बढ़ाया, खुदा की मोहब्बत को अपने अंदर और ज्यादा चमकाया। बाइबल हमें क्या सिखाती है? पहला पत्रस पहला बाब 22वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई, इसलिए दिलो जान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो। क्या करो जी? आपस में सास बहू आपस में मोहब्बत रखें। बड़ा मुश्किल है काम है, क्यों जी? लेकिन कलाम कह रहे हैं। और इसी तरह भाई भाई भी आपस में मोहब्बत रखें, बहन भाई आपस में मोहब्बत रखें, मियां बीवी आपस में मोहब्बत रखो। ऐसे ही लिखा है ना,
आपस में दिलो जान से, पूरे दिल से, पूरी जान के साथ, दुआ के साथ एक दूसरे की बर्दाश्त करते हुए बेरिया मोहब्बत जो खुदा ने आपके अंदर पैदा की है, दिलो जान से आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे से मोहब्बत करें। छोटी छोटी बातों से हम एक बड़ा पहाड़ बना लेते हैं और फिर हम आपस में एक दूसरे की इतनी ज्यादा तजलील करते हैं, तनकीद करते हैं और हम फलां बातों को दिल में रख के हम बेशुमार बातें कर देते हैं और फिर इब्लीस को मौका देते हैं कि वो हमारे अंदर खुदा की उस मोहब्बत को छीन कर ले जाए, चुरा कर ले जाए। खुदा की जो मोहब्बत जो आपके अंदर डाली गई है, ये बड़ी तेजी से निकल भी जाती है। आपने सुना खुदा के कलाम में खुदा यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी और उसने कहा एक बीज बोने वाला निकला और बीज राह के किनारे गिरा, कुछ जो है वो झाड़ियों में गिरा, कुछ पथरीली जमीन पर गिरा, कुछ जरखेज जमीन पर गिरा। और कई दफा तो हम देखते हैं कि जो खुदा के कलाम की मोहब्बत हमारे अंदर खुदा ने डाली, उसको परिंदे चुरा कर लेके चले जाते हैं और फिर हम अचानक से दोबारा अपनी पुरानी इंसानियत में आ जाते हैं। और लोग कहते हैं नहीं थे बपतिस्मा ले, ये तो बड़ी ऊंची ऊंची दुआएं भी करता था, ये तो बड़ी हालेलुया किनारे भी लगाता है। इसके अंदर कौन सी मोहब्बत है? इसके अंदर कौन सी खुदा की हजूरी काम करती है? कौन सा खुदा है जो इसके अंदर काम करता है और ये इंतहाई गंदी गालियां देता है, इंतहाई बुरी बातें करता है, इंतहाई इसके मुंह के अंदर बेईमानी के अल्फाज हैं और दुनियादारी के अल्फाज हैं। कलाम कहता है आपस में बहुत ज्यादा मोहब्बत रखो। यही बाइबल हमें सिखाती है। हमारा एक रूहानी फल जो है ये मोहब्बत है। तमाम ईमानदारों के अंदर मोहब्बत जो है एक फल है और वो फल हमारे अंदर नजर आना चाहिए। खुदा के कलाम में सबसे पहला हुक्म भी ये है, सबसे बड़ा और सबसे पहला हुक्म, इंपॉर्टेंट। खुदा यीशु मसीह ने कहा तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और यीशु ने कहा इसकी मानद में एक और हुक्म तुम्हें देता हूं कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफिकल्ट इन दिस वर्ल्ड। दुनिया के अंदर सबसे मुश्किल काम अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखना है, क्योंकि पड़ोसी तो अपने वर्गा नहीं मिले है। पड़ोसी जड़ा है वो गाना भी कटदा है, पड़ोसी बहुत ही बदतमीज भी है, पड़ोसी हर तरह की बदी, ज़नाकारी, हरामकारी और हर तरह के बुग़्ज़, कीना और झगड़े से भरा हुआ है। लेकिन कलाम ये कहता है कि तूने अपना काम करना है, तूने उसके साथ मोहब्बत का रवैया अपनाना है, क्योंकि ये हुक्म है। और खुदा के कलाम में लिखा है योर लव फॉर गॉड इज टेस्टेड। खुदा के लिए आपकी मोहब्बत जो है उसका इम्तिहान भी होता है और आपका इम्तिहान हर रोज होता है कि आपके अंदर खुदा के लिए कितनी मोहब्बत है। जब हम गैर कौम में जॉब करते हैं, काम करते हैं, रोजगार के मौके हमें मिलते हैं, कई दफा हम अपने यीशु को दोबारा सूली चढ़ा देते हैं, कुर्बान कर देते हैं अपनी मसीहत को, और हम भूल जाते हैं कि हम खुदा में यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। कलाम में लिखा है खुदा में यीशु मसीह ने जवाब में उनसे कहा अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। हालेलुया, उसके साथ सुकूनत करेंगे। अगर आपके अंदर खुदा की मोहब्बत है तो फिर यीशु आपके अंदर सुकूनत करता है। हालेलुया, खुदा आपके अंदर सुकूनत करता है और आपके घराने के अंदर खुदा की हजूरी सुकूनत करती है। अगर आपके अंदर खुदा मौजूद है तो फिर आप दुनिया की सारी कुव्वतों का मुकाबला कर सकते हैं। आप इब्लीस की सारी नापाक कुव्वतों के आगे अकेले खड़े हो सकते हैं और कह सकते हैं आय इब्लीस तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता,
क्योंकि कलाम में लिखा है अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे और वो मेरे कलाम पर अमल भी करे और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे, उसके साथ सुकूनत करेंगे, उसके घर के अंदर यीशु राज करेगा मेरे अजीजों। हालेलुया। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमारी मोहब्बत का इम्तिहान होता है। मियाँ बीवी की जब नई नई शादी होती है, पहले तो बढ़िया मोहब्बत होनी है, ऐ जनाब ब्लेड लैके कटिया जा रहा है और खून के साथ लेटर भी लिखे जाते हैं जी, बड़े बड़े अहदो पेमा किए जाते हैं, मैं तेरे नाल मोहब्बत करना हूं, मैं मीनारे पाकिस्तान तो छाल मार लेनी, हालांकि करना खुरना कुछ भी नहीं, और डरावा देना, मोहब्बत का डरावा। लेकिन मेरे दोस्तों, जब शादी हो जाती है तो वो जो मोहब्बत है वो हमारे अंदर से गायब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो दुनिया की मोहब्बत है जिसका इजहार हम कर रहे होते हैं, जिसको पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, वो दुनिया की मोहब्बत है। जब हमने शादी नहीं की तो क्या कभी हमने ये भी कहा आए हम दुआ करें? क्या होने वाली बीवी से या होने वाले शोहर के साथ क्या आपने कलाम की बातें शेयर की? मेरे अजीजों, बहुत जरूरी चीज है। खुदा में यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत, इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं है। सारी शरीयत, खुदा की सारी मामूरी, खुदा का सारा कलाम एक ही लफ्ज के ऊपर मुश्तमल है और वो है मोहब्बत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मोहब्बत के अंदर एक कुव्वत है, मोहब्बत के अंदर एक पावर है। ये ऐसी पावर है जब ये रिलीज होती है तो बड़े से बड़ा काम भी हम मोहब्बत से कर लेते हैं। बड़े से बड़े रिश्तेदारों के अंदर जो गुंजल पड़े होते हैं उनको भी हम खोल लेते हैं। बड़े से बड़े जो है नफाक खत्म हो जाते हैं, झगड़े खत्म हो जाते हैं। बड़े से बड़े मसाइल जो है हम उनको सुलझा लेते हैं सिर्फ मोहब्बत का रवैया अपनाकर। हालेलुया। मुश्किल है काम, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन। आज से कोशिश करना शुरू करें, 10% से शुरू करें, फिर 20% पर लेकर आए, 30%, 40%, 50%। जिनसे आप नफरत करते हैं उनको हेलो करना शुरू कर दें, उनसे दुआ सलाम लें, उनके साथ मोहब्बत का रवैया अपनाएं। अगर आप बच्चों से नफरत करते हैं, बच्चों से शफकत का, प्यार का रवैया अपनाएं। अगर आप अपने खावंद से मोहब्बत नहीं करते तो फिर अपने खावंद के साथ एक मोहब्बत के रवैये को अपनाना शुरू करें। अगर आप अपनी बीवी से नफरत करते हैं तो फिर मेरे अजीजों, आपका कलाम पढ़ना, आपका दुआ करना, आपकी गैर जुबानें और आपकी नबूवतें कुछ भी नहीं है। तो जीसस वांट्स यू टू लव अदर्स। खुदा यीशु मसीह ये चाहते हैं कि आप दूसरों से मोहब्बत रखें जैसे उसने आपके साथ मोहब्बत रखी है। और खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना 13:34 आयत में कहा, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। और इसी तरह खुदावंद ने कहा यूहन्ना 15:9 आयत में, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो, कायम रहो, कायम रहो। फिर आपके अंदर एक कुव्वत पैदा होगी। और खुदावंद ने कहा, मैं तुम्हें दूसरा हुक्म यह देता हूं कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखो। और मोहब्बत ही के वसीले से हम रिकग्नाइज किए जाते हैं कि हम ईमानदार हैं। लोग आपको मसीही क्यों कहते हैं? क्यों लोग मसीही कहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो मोहब्बत को देखते हैं। हम अगर मोहब्बत से खाली हैं तो फिर हम लोग मसीही नहीं हैं। मोहब्बत से ही हम ईमानदार कहलाते हैं। हालेलुया। तो कुरान में लिखा है, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। तुम मेरे शागिर्द इसलिए हो कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हो, तुम्हारी जुबान में मोहब्बत का रवैया है, तुम्हारे ख्याल, तुम्हारी सोचें, तुम्हारे इरादे और तुम्हारी तालीम मोहब्बत से भरी हुई है। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारी एक गाल पर कोई तमाचा मारे तो दूसरा भी उसके आगे फेर दे। मोहब्बत का रवैया। खुदा यीशु मसीह की जिंदगी से हम मोहब्बत और कंपैशन और हमदर्दी को देख सकते हैं। इवन कि जब वो अपनी जान दे रहे हैं सलीब के ऊपर, तो उस डाकू को जो गुनहगार था और उसको कहा कि तू आज मेरे साथ फरदौस में होगा। एक बड़ी मोहब्बत। वो तमाम रोमी
जो फकीर और फरीसी जो उसके ऊपर लान तान कर रहे थे, थूक रहे थे, उसको मार रहे थे, कोड़े मार रहे थे, और खुदावन उनके लिए कह रहे हैं, आए बाप इन्हें माफ कर, आए बाप इन्हें बख्श दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें माफ कर दे। मोहब्बत का रवैया। मेरे अजीजों, हम ईमानदार ही इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत है, और अगर हम खुदा की मोहब्बत से खाली हैं तो फिर हम ईमानदार नहीं है। इफ यू डू नॉट लव अदर्स, गॉड्स लव इज नॉट इन यू। खुदा की मोहब्बत आपके अंदर नहीं है फिर, अगर आप दूसरों से प्यार नहीं करते। कलाम क्या कहता है? जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूं और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तक तारीकी ही में है। जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है और ठोकर, क्या जी, ठोकर नहीं खाने का। तो फिर अगर आप कहते हैं मैं नूर में चलता हूं, मैं गैर जुबानें बोलता हूं, मैं दुआ करता हूं, मैं प्रस्तिश करता हूं, मैं चर्च जाता हूं, लेकिन आपकी जुबान में नफरत है लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और मोहल्लेदारों के लिए, अपने आप के लिए भी, तो फिर आप नूर में नहीं है, आपका ताल्लुक नूर के साथ नहीं है, आप मोहब्बत से खाली है। कलाम में लिखा है अगर कोई अपने भाई से अदावत रखता है और वो कहता है मैं नूर में चलता हूं, तो जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यू लव योर एनिमीज। यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो। मोहब्बत की एक बड़ी मिसाल खुदा यीशु मसीह ने एक मिसाल देते हुए कहा कि एक शख्स था, दूर दराज जा रहा था और रास्ते में उसको डाकू मिल जाते हैं और डाकू बुरा हाल कर देते हैं उसका, और वो अधमुआ पड़ा हुआ रास्ते में पड़ा, चौराहे पे पड़ा होता है, और एक लावी गुजरता है, एक फिका और शरा का आलम गुजरता है और देखकर उसको कतरा कर गुजर जाता है। लेकिन जब एक सामरी शख्स गुजरता है, सामरी कौन थे आपको पता है? सामरी जिनसे यहूदी नफरत करते थे, ये गैर कौम थी और यहूदी इनसे नफरत किया करते थे। और एक सामरी जब गुजरता है वो उसको उठाता है, उसकी मरहम पट्टी करता है, उसको एक सराय में जगह देता है, ले जाता है और उसका खर्चा पानी उठाता है, पैसे देता है। यीशु ने कहा तुम्हारे नजदीक दोस्त कौन था? दोस्त सामरी था। मोहब्बत का एक बड़ा हमें नजर आता है, यीशु की मोहब्बत। दुश्मनों से मोहब्बत रखें, यह आपके अंदर कुव्वत को पैदा करता है। मेरे अजीजों, जब आप अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखते हैं, कलाम में लिखा है लूका 6 बाब, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से ये कहता हूं अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो, जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो। हालेलुया। हम क्या करते हैं? उन्हें गाल कटी, ऐसी बड़ी सारी गाल होर काट देने, ले फिर होर दस, और गलती से उसने ऐसे धक्का दे दिया उसको आर तक चपेड़ा मार देगा। यार हमारे अंदर रवैया क्या है? हम अग्रेसिव हैं, हम नफरत से भरे हुए हैं, हम गुस्से से भरे हुए हैं, तलखी से भरे हुए हैं। हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं है, हमारे अंदर नफरत है, दुनिया की लानतें हमारे अंदर भर जाती हैं और दोबारा से हम पुरानी इंसानियत का लबादा ओढ़ लेते हैं। कलाम क्या कहता है? जो तुम्हारी तहकीर करता है उसके लिए दुआ करें, और अगर तुम उन्हीं के लिए भला करो जो तुम्हारे लिए भला करें तो तुम्हारा क्या एहसान है? तुम कौन सा बड़ा काम कर देते हो? क्योंकि गुनहगार भी ऐसा ही करते हैं। मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, भला करो और बगैर नो उम्मीद हुए कर्ज दो, तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे। हालेलुया। क्योंकि वो नाशुक्रों और बदों पर सब पर मेहरबान होता है। अब देखें दुनिया में कैसी कौमें हैं जो बुतों को मानती हैं, खुदा पर लानतान भी करती हैं, खुदा से नफरत करती हैं, खुदा को मानती भी नहीं है, तो भी खुदा अपनी बारिश उन पर बरसाता है, अपना सूरज उन पर चमकाता है, उनके यहां भी खूबसूरत बच्चे पैदा होते हैं, उनके औलादें भी खूबसूरत होती हैं। खुदा की मोहब्बत को देखें, वो नाशुक्रों और बदों पर भी मेहरबान है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुश्मनों से मोहब्बत रखो। अगर हम अपने जानने वालों के लिए भला करते हैं तो कौन सब अच्छा काम करते हैं? तो फिर सभी कर रहे हैं। हमारा काम सिर्फ ये नहीं है, हमारा काम ये भी शामिल है कि हम अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखें, उनसे भी अच्छा रवैया अख्तियार करें। खुदावंद का कलाम हमारे लिए वाज़िह है। योर लव इज
abound, which means it is continually increase. खुदा का कलाम हमारे अंदर जूं जूं बढ़ता है, हमारी मोहब्बत में अजाफा होता जाता है। अजाफा, मुसलसल अजाफा करें, खुदा की मोहब्बत को बढ़ाएं, और यही खुदा हमें सिखाता है। हम खुदा की मोहब्बत में जड़ पकड़ते चले जाएं। कलाम ये कहता है, और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ते और बुनियाद कायम करो। जड़ पकड़ते चले जाएं। एक मुश्किल काम है, लेकिन मेरे अजीजों, अगर आप कुव्वत को हासिल करना चाहते हैं तो मोहब्बत को अपने अंदर ले आए। मोहब्बत की कुव्वत आपके अंदर है, मोहब्बत के अंदर चलना शुरू करें। कलाम में लिखा है, और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। तो हमें मोहब्बत से चलना है, बर्दाश्त करना है। कलाम में क्या लिखा है, यानी कमाल फरोतनी हिलम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करें। कई दफा हम बर्दाश्त करते हैं, कई दफा नहीं करते। तो कोशिश करें अपने अंदर खुदा की मोहब्बत को और ज्यादा बढ़ाएं और ज्यादा कायम करें। मेरे अजीजों, ये काम मुश्किल नहीं है, ना ही नामुमकिन है। खुदा की मोहब्बत हमारे लिए मौजूद है, दोस्तों के लिए, बहनों और भाइयों के लिए, अजीजों के लिए। खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर बढ़नी चाहिए, और जब हम खुदा की मोहब्बत को अपने अंदर बढ़ाएंगे तो फिर हमारे अंदर से कुव्वत निकलेगी। खुदा में यीशु मसीह जो इस दुनिया में एक गिफ्ट थे, एक बख्शिश थे। खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना 3 बाब 16वीं आयत में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। खुदा की मोहब्बत देखें। हम खुदा तो नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम हम ऐसा रवैया जरूर अपना सकते हैं जिससे हम दूसरों के लिए बाइस से बरकत हो। कलाम क्या कहता है, खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी जब दुनिया लानत के कब्जे में थी, जब दुनिया हर तरह से बदकारी और ज़नाकारी, हरामकारी से भरी हुई थी, जब दुनिया बदकारी की मुकम्मल लपेट में थी, कि उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया के लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई शख्स उस पर ईमान लाए वो बच जाए। The love is the greatest power of this world. यीशु ने इस अजीम मोहब्बत का मुजाहरा हमारे सामने किया, और खुदावंद ने सलीब पर जब वो जान रहे थे तो अपने तमाम दुश्मनों को माफ कर दिया, और उसने कहा, आए खुदावंद तूने माफ कर, आए बाप तूने माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। मेरे अजीजों, आए हम सब खड़े हो जाएं और इस मोहब्बत को अपने अंदर प्रोड्यूस करना शुरू करें।